नेट पे गूगल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे तो हमें क्या परोसा जा रहा है? What they are serving you? They are serving you pornography. और ऐसी चीजें देखने से हमारी बुद्धि, ये मेंटेलिटी जो है वो नीचे स्तर पे जाएगी, डाउन चली जाएगी, या वो अपलिफ्ट हो जाएगी, उसका अपग्रेडेशन होगा, क्या होगा? डाउन चली जाएगी। और आज जो नशा करते हैं यंगस्टर्स, आज ये जो गलत गलत चीजें देखते हैं, उसकी वजह से बुद्धि तामसिक होती जा रही है। भगवत गीता में इन सारी बातों के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। Everybody, so today's our topic is science versus silence. Before starting the seminar, we'll do the meditation for 2 minutes. एक ध्यान की जो डिफरेंट प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। आप सभी सीधे बैठिए, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। And you have to concentrate in the center point of the head, in the center point of the forehead, and you have to just imagine that a star which is there in the sky, you have seen the star blinking in the sky, you just remember that star in the middle of the forehead. It is just like a point of light. Many thoughts will come into your mind when you will start concentrating and focusing. Don't run behind those thoughts. Only think only one thought, that I am the point of light situated in the center point of the forehead. You have to remember only this one thought. You don't have to close your eyes fully. Have you seen the images and idols, pictures of Shiv Shankar Bholenath? Have you seen? His eyes are completely open when he is in the deep meditation stage, or his eyes are partly closed, partly open. What is it? Is it completely open or partly open, partly closed? Ardon milit netra, partly open, partly closed. So, in Bhagavad Gita, God teaches us Karma Yoga. The meaning of Karma Yoga is while performing action, we have to remain in the meditation stage. How is that possible? And for that, I am telling you that you practice in such a way that your eyes are not completely closed, because there are many meditation techniques in the market nowadays, and they are teaching artificial meditation. So while doing the karma, you should have to concentrate in the middle of the forehead. So please keep your eyes partly open and concentrate in the center point of your head, forehead, and don't run behind the thoughts. Only one thought, I am the point of light. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जी। Concentrate ourselves for 2 minutes, and I have seen, because my eyes were not completely closed, there were so many students
who were looking at each other, they were not concentrating for 2 minutes. So the mind is flickering, it is not stable. The one who was at the time of meditation, too many thoughts are coming into his mind, then his mind is sick, it is unhealthy. And the person who was meditating and at that time there were less thoughts coming into his mind, then his mind is stable, it is healthy mind. So today's topic is science versus silence. Can anybody tell me what is the difference between modern science and silence? Can you answer me what is the basic difference between the modern science and silence? Modern science is invented by the human being, but the power of silence comes from the spiritualism, and it is taught by only one person, that is God, none else. So silence and science, there is a difference between the both. Now what happened, the science has done much development in internet technology, artificial intelligence, robotics technology. There is much development. In spite of that, our minds are stable or unstable. We are fully feeling concentrated mind or focused mind, or it is not focused. What is happening? We are using the mobiles, we are using the internet technology, we are using the social media, and in spite of that, what is happening? Our mind is stable or it is flickering? What is happening? Tell me. What is happening? It is becoming concentrated, focused, or it is running here and there. What is happening? Internet technology, social media, our minds are becoming stable, concentrated, or it is just diverting from one thought to another thought. It is flickering. What is happening? Tell me. Since morning to the night, positive thoughts are coming into our mind, or negative thoughts or waste thoughts coming into our mind. What is happening? से लेकर रात तक, since morning to night, what we are doing, what we are reading, what we are listening, and the movies we are watching, the web series we are watching, and the different social media platform is there, different reels which we are watching, and whatever we are looking at, वैसे ही हमारा मन बन रहा है. हमारे मन और बुद्धि को जो फीडिंग हम दे रहे हैं, माइंड और इंटेलेक्ट को, वो फीडिंग हम क्या दे रहे हैं? जैसे कोई चाइल्ड है, चाइल्ड को अगर आप हेल्दी फूड दे देंगे, बहुत अच्छा डाइट दे देंगे, उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाएंगे, उसको जूसेस पिलाएंगे, तो वो चाइल्ड हेल्दी बनेगा. वैसे हमारा माइंड और इंटेलेक्ट आज हेल्दी है या नहीं है, ये हम चेकिंग नहीं करते. वी आर नॉट डूइंग द असेसमेंट ऑफ आवर माइंड वेदर इट इज हेल्दी और नॉट. सवेरे से लेकर रात तक, सिंस मॉर्निंग टू नाइट, किस प्रकार के विचार हमारे मन में चलते हैं, कैसे कैसे थॉट्स हमारे मन में आते हैं, इसको हम चेकिंग नहीं कर रहे. और उसकी वजह से, माइंड अनहेल्दी रहने की वजह से, आज हम डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की जो मनोविकार है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से उसके शिकार हो रहे हैं. और इसका मूल कारण है कि मन को एकाग्र करने का अभ्यास जो है, माइंड को कंसंट्रेशन करने का जो अभ्यास है, वो हम सवेरे से लेकर रात तक कोई भी समय 10 मिनट्स या 15 मिनट्स हम कोई भी समय नहीं देते हैं. When you are going to bed at night, what is happening? You are giving rest to your body. लेकिन आपका जो मन है वो भटकता रहता है. रात को अलग अलग ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, और यहाँ वहाँ मन भटकता रहता है, कैसे कैसे लोग याद आते हैं. तो एक्चुअली शरीर के लिए तो हम सवेरे से लेकर रात तक समय देते हैं,
लेकिन मन को एकाग्र करने के लिए कोई भी नहीं समय देते हैं। आज की जो यंग जनरेशन है, दैट इज कंप्लीटली एडिक्टेड विद दिस मीन्स ऑफ द साइंस। मैं एडिक्शन ये शब्द यूज कर रहा हूँ, और उसकी वजह से हमारी मेंटेलिटी जो है ये डाउन जा रही है। एक वर्ड बोला जाता है हिंदी में पतित, पतित और पावन। पतित मीन्स डिग्रेडेड, डिग्रेडेशन, एंड पावन मीन्स अपग्रेडेशन, मीन्स ऊपर जाना, ऊपर उठना। तो हमारी जो मेंटेलिटी है वो नीचे चली जा रही है, क्योंकि साइंस के जो साधन है इसमें हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं। साधनों का यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधना को भूलकर साधनों के अधीन होना गलत बात है। साधन मीन्स एंड अप्लायंसेस ऑफ द साइंस, मॉडर्न साइंस, एंड साधना मीन्स concentrating your mind. Now what has happened, we have become completely dependent on the means of the science. हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं, सवेरे से लेकर रात तक हम मोबाइल के सिवाय रह नहीं सकते हैं। सवेरे से लेकर रात तक हम कोई भी समय अपने मन को एकाग्र करने के लिए नहीं देते हैं। Now we forgot that what is my real identity. मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? Who am I? मैं कौन हूँ? एक्चुअली हम खुद को नहीं जान रहे अभी। हम सारी दुनिया में सुख और शांति, पीस एंड हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। We are finding the peace and happiness among our relatives, among our friends, among our family members, and we are also searching peace and happiness in the different means of the science. And in spite of that, using all those things, we are not getting real peace and happiness. That is the problem. So how can we get the real peace and happiness? How can we get the 100% real peace and happiness? And the solution lies within the spirituality. First, we should know that what is the meaning of the spirituality. Spirituality का meaning क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अध्यात्म। आप में से किसी को पता है कि अध्यात्म का मीनिंग क्या है? What is the meaning of अध्यात्म और spirituality? स्पिरिट मतलब आत्मा, अध्यात्म का मीनिंग है अधि प्लस आत्मा। These are the two words, अधि प्लस आत्मा। अधि means inside and the second word is the आत्मा। आत्मा के अंदर की नॉलेज। अभी जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है, वहाँ आत्मा की नॉलेज नहीं पढ़ाई जाती है। We have the knowledge of only physical body। हमें सिर्फ फिजिकल बॉडी की नॉलेज है। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, आज बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक जो भी वेन्स, आर्टरीज, हर एक बॉडी के एक छोटे से छोटे हिस्से की नॉलेज है मेडिकल साइंस को। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी आ गई तो भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपकी बीमारी के लिए क्या करना है, क्या ऑपरेशन करना है, क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है, सभी तरीके के सॉल्यूशन है। तो आज फिजिकल बॉडी की नॉलेज तो हमें है, लेकिन इस फिजिकल बॉडी को जो कंट्रोल करने वाली जो एनर्जी है, जो पावर है, उसकी नॉलेज हमें नहीं है। आज हमें फिजिक्स पढ़ाई जाती है, लेकिन फिजिक्स माना भौतिक नॉलेज, भौतिक ज्ञान, उसके परे जो नॉलेज है उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब है पराभौतिकी, बियॉन्ड द फिजिक्स। आज साइंस में, मॉडर्न साइंस में जितना भी रिसर्च किया है, वो रिसर्च लिविंग थिंग्स के ऊपर किया है, लिविंग पर्सनैलिटी के ऊपर रिसर्च किया है, या नॉन लिविंग पर्सनैलिटी के ऊपर, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर रिसर्च किया है। मतलब डेड बॉडी के ऊपर वो रिसर्च करते हैं, लिविंग थिंग्स के ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं। आज जितना भी रिसर्च है वो मटेरियल के ऊपर रिसर्च है। इसलिए हम बोलते हैं कि है ना, दिस इज द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये भौतिक दुनिया है। आज जितने भी रिसर्च हुए हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्टडी किया है साइंटिस्ट ने, लेकिन भारत के ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया है वो रिसर्च अणु और रेणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर नहीं किया है। दे हैव डन द रिसर्च इन माइथोलॉजी, इन द स्पिरिचुअल साइंस, आत्मा और परमात्मा के ऊपर रिसर्च किया है। और ये नॉलेज
आज से 150 इयर्स बैक मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति लाई, लॉर्ड मैकॉले, उसने जो शिक्षा पद्धति लाई, आज की शिक्षा पद्धति में हमें आत्मा की नॉलेज पढ़ाई नहीं जाती। हमें स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे इंक्रीज करनी है, मेंटल हेल्थ कैसे इंक्रीज करनी है, इसकी नॉलेज नहीं दी जाती। आज जो हमें नॉलेज दी जाती है उससे हमें क्या मिलेगा? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपको डिग्री मिलेगी, और डिग्री मिलने के बाद क्या होगा? डिग्री मिलने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो आज की जो विद्या है और शिक्षा है, ये पेट भरने तक की सीमित विद्या है, ओनली टू अर्न मनी। और आज की शिक्षा में कभी भी नैतिकता, चारित्र्य, मोरालिटी, इसको कैसे इंक्रीज करना है, इसको कैसे अपग्रेड करना है, इसकी कोई भी प्रकार की नॉलेज नहीं दी जाती। तो जो मॉडर्न साइंस ने आज इतनी सारी डेवलपमेंट कर दी है कि जैसे कि हम एक जगह पे बैठे हैं यहाँ पे, और समझो हमारा दूसरा कोई फ्रेंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठा है, तो हम यहाँ से वीडियो कॉलिंग से उससे बात कर सकते हैं। आजकल सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी भी इतनी बढ़ गई है कि हम दूर की चीज़ें घर बैठे देख सकते हैं टेलीविज़न के द्वारा। तो ये साइंस के साधनों से पॉसिबल है। तो मुझे बताइए, क्या आज ये पॉसिबल नहीं है कि कलकत्ता में माँ बैठी हुई है और जो उसका बेटा है राहुल, वो अमेरिका चला गया, तो माँ यहाँ बैठ के अपने बच्चे को अगर याद करती है तो क्या बच्चे को टचिंग हो जाएगी? उसको टचिंग होगी या नहीं होगी? अगर सच्चे दिल से माँ अपने बच्चों को याद करती है तो बच्चा बोलता है कि अपने फ्रेंड को मेरी माँ ने जरूर मुझे याद किया रहेगा। होता है ऐसे? पॉसिबल है? होता है या नहीं होता है? पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। तो ये जो वाइब्रेशन की पावर है, ये जो मन के संकल्पों की पावर है, दिस इज द पावर ऑफ योर वाइब्रेशंस। दोज वाइब्रेशंस आर कमिंग फ्रॉम योर थॉट्स ऑफ योर माइंड। लेकिन आज हम ये संकल्प शक्ति, ये थिंकिंग पावर, ये वाइब्रेशन की पावर कंप्लीटली भूल चुके हैं। जैसे हम वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं मोबाइल की, उस वायरलेस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशन का खेल है। फ्रीक्वेंसीज मैच कर लेते हैं वो लोग, वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसीज भी मैच हो सकती है, हमारे वाइब्रेशंस भी ट्रैवल हो सकते हैं। लेकिन मन की शक्ति कमजोर होने की वजह से, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म की नॉलेज नहीं है, अध्यात्म शक्ति की नॉलेज नहीं है हमारे पास, इसको बोलते हैं विल पावर। मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, इसको बोलते हैं विल पावर। आज विल पावर सबकी कमजोर हो चुकी है, और विल पावर कमजोर होने का मूल कारण है कि हमारी जो मन और बुद्धि है ये कंप्लीटली विशियस बन चुकी है। इट इज engulfed by the 5 vices. Anybody knows which are the 5 vices which have engulfed our mind and intellect? 5 विकार कौन से हैं? आपको पता है किसी को? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मैडम ने सही बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम? काम मीन्स कामना, इट इज डिजायर। एंड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर अमंग ऑल द डिजायर्स? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? बताइए, कौन सी डिजायर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है? लोभ, ग्रीड। ही इज सेइंग दैट ग्रीड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। और किसी की कोई जवाब है किसी का? एरोगेंस। एरोगेंस इज नॉट द डिजायर। एरोगेंस is one of the 5 vices. But I am asking you, the first vice is calm. Calm means desire. And which is the strongest desire? The strongest desire is lust, sexual desire. उसको बोलते हैं विषय वासना। आज बंगाल में जो भी दुष्कर्म हुआ, कलकत्ता में जो इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से पूरा भारत में हंगामा मच गया पूरी तरीके से,
उसका मूल कारण क्या था? यही कारण था. सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर. और आज गवर्नमेंट को हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि स्ट्रिंजेंट लॉज आप पास करो पार्लियामेंट से. हम बोल रहे हैं कड़े कानून लाओ. हम बोल रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट दे दो. हम बोल रहे हैं कि उसको चौराहे पे लेके सरेआम उसका सर कलम कर दो. लेकिन क्या इससे मेंटेलिटी, मानसिकता चेंज हो जाएगी? उसके अंदर जो राक्षसियत है, हैवानियत है, जो डेमोनिक डेविल बैठा हुआ है उसके अंदर, क्या वो चेंज हो जाएगा? वो तो हंसता हुआ जाएगा फांसी की सजा में. उसको कोई परवाह नहीं है. द मेंटेलिटी जो है, जो मानसिकता है, उसको चेंज करने के लिए आज जरूरत है स्पिरिचुअल साइंस की, आध्यात्मिकता की. आज मन में और बुद्धि में हमारी जो फीडिंग हो रही है, आज गवर्नमेंट आपको क्या परोस रही है? मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में अगर बोलूं तो इंटरनेट पे गूगल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे तो हमें क्या परोसा जा रहा है? व्हाट दे आर सर्विंग यू? दे आर सर्विंग यू पोर्नोग्राफी. और ऐसी चीजें देखने से हमारी बुद्धि, ये मेंटेलिटी जो है वो नीचे स्तर पे जाएगी, डाउन चली जाएगी, या वो अपलिफ्ट हो जाएगी, उसका अपग्रेडेशन होगा. क्या होगा? डाउन चली जाएगी. और आज जो नशा करते हैं यंगस्टर्स, आज ये जो गलत गलत चीजें देखते हैं, उसकी वजह से बुद्धि तामसिक होती जा रही है. भगवत गीता में इन सारी बातों के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को ये नहीं पूछा कि मुझे मेरा गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है, हाउ टू फाइट इन द बैटल फील्ड. ही डिडंट आस्क गॉड. अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा बलवान है, ये बहुत भटकता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं. अर्जुन तो धनुर्धारी था, उसके बावजूद अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा भगवान को. आज हम सभी नंबरवार अर्जुन हैं. आज महाभारत में सिर्फ एक द्रौपदी दिखा दी और एक दुर्योधन और एक दुशासन दिखा दिया. आज करोड़ों द्रौपदी है, करोड़ों दुर्योधन दुशासन है. तो असली महाभारत की जो बैटल फील्ड है आज अभी तैयार बैठी हुई है. और इस बैटल फील्ड में हम सब नंबरवार अर्जुन है. जैसे अर्जुन की मनस्थिति थी, माइंड की जो स्टेटस थी, स्टेज थी, वही माइंड की स्टेज हमारी भी है. अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, मेरा मन बड़ा चंचल है, इट इज फ्लिकरिंग, ये वायु के समान गतिमान है, इट इज फ्लोइंग लाइक द विंड, और इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? तो भगवान ने जवाब दिया अर्जुन को. भगवान ने 2nd चैप्टर ऑफ द भगवत गीता से लेके 18 चैप्टर ऑफ द भगवत गीता तक अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई. अर्जुन को जो नॉलेज दी, ये माइंड को कंट्रोल करने की नॉलेज दी, आत्मा की शक्ति बढ़ाने की नॉलेज दी, सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तामसी गुण क्या है, इसकी नॉलेज दी. तो भगवान ने अर्जुन को 2 सॉल्यूशंस दिए. एक तो बताया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते. बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर. क्या कर? बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो ये मन बार बार चंचल होता है, बार बार इसको इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, इसको बोलते हैं उत्तमांग. क्या बोलते हैं इसको? उत्तमांग. उसके नीचे these are the 5 senses, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, these are the 5 senses. तो ये जो टॉप में बैठा है इसको कहते हैं उत्तमांग. और टॉप में राजा बैठता है. ही इज द कंट्रोलर ऑफ एंटायर फिजिकल बॉडी, कंट्रोलर ऑफ ऑल द सेंसेस. तो अगर हमने अपने चंचल मन को यहाँ सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड में अगर एकाग्र कर लिया और आत्मा का अभ्यास करते हुए अगर हम सुप्रीम पावर से अगर कनेक्शन जोड़ा, देन दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज योग. आज हमको योग का असली मीनिंग क्या है इसको हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से. आपको किसी को योग की डेफिनेशन आप मुझे बता सकते हैं? कोई भी
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योग, या आपको एक लिटरल मीनिंग योग से पता चलता है, वो क्या मीनिंग है? आप में से किसी को पता है? যোগ একটা পদ্ধতি, একটা তালিকা, মানে কন্ট্রোল করার জন্য, মনকে কন্ট্রোল করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট প্রসিডিওর। आत्मा के साथ परमात्मा का संयोग करने को योग बोलते हैं। एकदम परफेक्ट आंसर, तालियां चाहिए। বা परफेक्ट आंसर, मैडम ने भी सही बताया। और आपके ये जो स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? आनंद किशोर मुखर्जी। आनंद कृष्ण मुखर्जी, किशोर। किशोर मुखर्जी, ओके, वेरी गुड आंसर। इन्होंने योग की डेफिनेशन बताई, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। आज हम जो योग समझ बैठे हैं, आज हम योग किसको समझ बैठे हैं? योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे हैं। आज रामदेव बाबा सारे भारत भर सवेरे सवेरे नेशनल न्यूज चैनल पे आके योग सिखाते हैं और इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। योग का योगा कर दिया, दैट इज नॉट रियल योग। द राजयोग which was taught by God in Srimad Bhagavad Gita, that is completely different. That has nothing to do with this yogasan and pranayam. योगासन और प्राणायाम आपकी फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए है बस, लेकिन जो राजयोग की प्रक्रिया है वो आज हम भूल गए। इसलिए आज जो फॉरेनर्स है उनको भी हमने योगासन और प्राणायाम ही सिखा दिए। जो राजयोग है उसका मीनिंग है कि चंचल मन को आपको भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ना। क्रिश्चियन लोग कहते हैं उस सुप्रीम पावर को गॉड, मुस्लिम लोग कहते हैं उसको अल्लाह, हिंदू लोग कहते हैं शिव या ईश्वर। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही सुप्रीम पर्सनैलिटी, एक सुपर पर्सनैलिटी है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। आपकी मोबाइल की बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो आप क्या करते हैं? मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग करते हैं, दिन में 2 बार भी चार्जिंग करते हैं। वैसे हमारे माइंड में जो रेगुलरली निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हमारे माइंड में वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी रेगुलरली डिस्चार्ज हो रही है, डेली डिस्चार्ज हो रही है। और उसको चार्जिंग करने का कोई भी तरीका हमको आज पता नहीं है कि इस मन की एकाग्रता कैसे बढ़ाए, इसको कैसे चार्जिंग करें। तो उसको कोई बैटरी, छोटी बैटरी है, उसको चार्जिंग करना है तो आप कनेक्शन किससे जोड़ते हैं? बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ते हैं, या आप जनरेटर से कनेक्शन जोड़ते हैं। वैसे ही आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही है, आत्मा की शक्ति कमजोर हो रही है, द विल पावर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, तो उसको अगर इंक्रीज करना है तो आपको आत्मा का कनेक्शन किससे जोड़ना पड़ेगा? सुप्रीम पावर से, परमात्मा से, बड़ी बैटरी से या जनरेटर से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो राजयोग की जो प्रक्रिया है भगवत गीता में, भगवत गीता ने भगवान ने 2 तरीके बताए अर्जुन को। एक तो योग एंड द सेकंड वन इज द डिटैचमेंट। व्हाट इज द डिटैचमेंट? अभ्यासन तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर। और द सेकंड थिंग इज डिटैचमेंट, वैराग्य। आज वैराग्य का डेफिनेशन भी हम गलत समझ बैठे हैं। हम क्या समझ बैठे हैं? अगर भगवे वस्त्र पहन लिए और जंगल में चले गए तो इसको हम वैराग्य समझ लेते हैं। इज इट राइट? हम समझते हैं कि फैमिली मेंबर्स को अबांडन कर दो, छोड़ दो और जंगल में चले जाओ भगवे वस्त्र पहन के, इसको हम वैराग्य समझ लेते हैं। क्या ये रियल वैराग्य है? आज मैं भी आध्यात्मिक नॉलेज रखता हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन दिल्ली इन कोर्ट्स। तो एक व्यक्ति जो दूसरे प्रकार के कपड़े पहन रहा है तो क्या वो वैराग्य धारण नहीं कर सकता? डिटैचमेंट धारण नहीं कर सकता? सिर्फ कपड़ों से ही वैराग्य समझ में आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन आज ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एंड उसी की वजह से आज लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग रहे हैं, अध्यात्म से दूर भाग रहे हैं। आपने अगर कमल का फूल देखा होगा, फ्लावर ऑफ लोटस, जो लोटस फ्लावर है उसमें वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद उसकी कीचड़ की एक भी बूंद
उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं करती है। वैसे ही ये जो दुनिया है ये कीचड़ की दुनिया है। कलयुग में दो दोष है, अन्न दोष और संग दोष। संग दोष मीन्स बैड कंपनी, अन्न दोष एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। तो आज कलयुग में हम ये जो दुनिया है, दिस इज द विशियस वर्ल्ड, ये भौतिक दुनिया है। ये हमारे पांचों विकारों को बढ़ावा देती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये पांचों विकार अगर हमारे बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से हम इस दुनिया में पतन की तरफ चले जाते हैं, पापों के गर्त में चले जाते हैं। हमारी जो भी एक्शंस है वो सिंफुल एक्शंस हो जाते हैं। तो डिटैचमेंट जो है, कमल पुष्प समान जीवन, मतलब इस विशियस वर्ल्ड में रहते हुए, कर्म करते हुए, while performing actions, you have to remain detached by mind and intellect. You have to perform your duties. ऐसा नहीं कि अपने फैमिली को छोड़ के भाग जाना है। अपने परिवार में रहो, अपने सोसाइटी में रहो, और सोसाइटी में रहते हुए मन को कंट्रोल करने का अभ्यास, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का जो अभ्यास है, वो राजयोग की प्रक्रिया है। आज हम क्या करते हैं, हमारे जो सेंसेस है, हमारे जो ऑर्गन्स है, वो कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड है, और हम कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड है, माइंड भी हमारा अनकंट्रोल्ड है, और उसकी वजह से हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती जा रही है। जो योगी पुरुष है वो अपने मन को कंट्रोल करने का, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है, और भगवत गीता में ये नॉलेज दी हुई है। भगवत गीता में बोला है कि मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, किसी को पता है? अमृत वेला। इट इज कॉल्ड एज ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सबसे अच्छा समय है। सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है वो सबसे अच्छा समय है। तो इस समय अगर हम उठते हैं और सवेरे जल्दी उठ के अगर हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, यहाँ उत्तमांग में अपने मन के सारे थॉट्स को यहाँ पे एकाग्र करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, मन को एकाग्र करने से आप देखेंगे धीरे धीरे अगर आप 3 महीने 6 महीने रोज सवेरे 4 बजे उठ के अगर अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, आपके जितने भी मन के प्रॉब्लम है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर सारे गायब हो जाएंगे। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की दरकार नहीं है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो कोई एलोपैथिक टैबलेट्स देता है, वो खाते रहते हैं, सोते रहते हैं। मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है वो अभ्यास करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा समय है। इस समय जल्दी उठ जाइए। भगवत गीता में बोला है, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी। जो सभी दुनिया के लिए रात्रि है, उस समय योगी लोग जो है वो जागृत अवस्था में होते हैं, वो जागते हैं, वो अमृत वेला का समय है। कितने बजे उठते हैं? 4 बजे। क्योंकि मैं डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में विजिट कर चुका हूँ और मुझे ये पता चला कि आजकल यंगस्टर रात को 2 बजे सो जाते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरुआत होता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 2 बजे से लेके 4:45 बजे 4:45। दिस इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है। सो द बेस्ट टाइम पीरियड इज 2 o'clock in the morning to 4:45 in the morning। उस समय अगर उठकर आप चंचल मन को, जो माइंड के थॉट्स स्कैटर हो रहे हैं, उसको एकाग्र करने का अगर अभ्यास करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी दूंगा कि 3 महीने के अंदर within 90 days you will feel change in your mind, completely change, and you will start feeling real peace and happiness। आज हम शांति और सुख के लिए भटक रहे हैं कंप्लीटली, और शांति और सुख हमें मिल नहीं रहा है क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमें हमारी रियल आइडेंटिटी पता नहीं है।
आज साइंस एक पहेली का जवाब नहीं दे पाई। वो पहेली है हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। आपको किसी को पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हु एम आई, क्या जवाब देंगे आप? हु एम आई। मैंने अगर क्वेश्चन पूछा हु आर यू, तो आप जवाब देंगे कि मैं बंगाली हूँ। दूसरा स्टूडेंट जवाब देगा मैं बिहारी हूँ। तीसरे ने जवाब दिया मैं गुजराती हूँ। एक ने जवाब दिया आई एम एन इंजीनियर, एक ने जवाब दिया आई एम डॉक्टर, तीसरे ने जवाब दिया मैं वकील हूँ। किसी ने बोला मैं इंडियन हूँ, किसी ने बोला मैं अमेरिकन हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं हिंदू हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं मुस्लिम हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं क्रिश्चियन हूँ। सो व्हाट वी आर डूइंग, we are considering, we are thinking that our real identity is as per our qualification, as per our religion, on the basis of our caste, on the basis of our nationality। तो जाति, धर्म, क्वालिफिकेशन, इसके आधार पे हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। और हमारी रियल आइडेंटिटी पता नहीं होने के कारण, अपने आप को जानने के न कारण हम आज दुखी और अशांत है। रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है। सो माय रियल आइडेंटिटी इज, क्या है मेरी रियल आइडेंटिटी? आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। तो सोल की जो आइडेंटिटी ये हमें पता नहीं है। और सोल तो इनविजिबल है, वो आंखों से दिखती नहीं है। अगर वो इनविजिबल है तो हम उसको कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? तो मैंने उसके लिए आपको एक सोल्यूशन दिया। You have seen the star in the sky, smallest star in the sky. You can imagine star in the middle of your forehead or point of light in the middle of your forehead, and you can practice, and you will come to know that there is a tremendous power, pulling power is there in the center point of the forehead. तो आत्मा के अभ्यास की ये प्रक्रिया है। जैसे हमारे फिजिकल बॉडी का भोजन है, फूड है, वैसे आत्मा का भी भोजन है। आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? एनीबॉडी नोस व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? और जो आत्मा की भोजन है उसको हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। जॉब करने का मैडम ने जवाब दिया, जॉब करना। और कोई सॉल्यूशन? परम ब्रह्म का नाम जप करना एक सॉल्यूशन है। और क्या सॉल्यूशन है? तो आत्मा का जो भोजन है, द फूड ऑफ द सोल, देयर आर टू फूड्स ऑफ द सोल। द फर्स्ट वन इज द योग, दैट इज ध्यान, एंड द सेकंड वन इज द स्पिरिचुअल नॉलेज। मैडम ने जो बोला वो भी परफेक्ट है, लेकिन जब हम जाप करते हैं, when we chant the name of God, at that time what is happening? हमारा मन जो है भटकता रहता है। मन में बुरे विचार आते हैं, बैड थॉट्स भी आते हैं। तो अगर हम जो वाचा है, हमारा जो वाणी है, वाणी से भी जो सूक्ष्म है वो हमारे मन के विचार है। अगर हम वाणी से राम राम बोलने से अच्छा है हमारे मन के विचारों को कंट्रोल करने का। यहाँ पे पॉइंट ऑफ लाइट पे अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सो दैट इज द हाईएस्ट लेवल। उसके भी ऊपर का लेवल है, जाप करने के ऊपर का लेवल। बिकॉज द थॉट्स ऑफ द माइंड आर गोल्ड एंड द स्पीच इज सिल्वर। जो हम मुख से वाचा बोलते हैं वो सिल्वर है, और जो मन के विचार अगर कंट्रोल करते हैं तो दैट इज गोल्ड। तो उसके लिए देयर आर टू फूड्स ऑफ द सोल। द फर्स्ट वन इज द स्पिरिचुअल नॉलेज एंड द सेकंड वन इज द योग, राजयोग। तो ये दो तरीके से आप अपने आत्मा को, अपने मन को हेल्दी बना सकते हैं। आज हम सवेरे से लेकर रात तक एक घंटा भी स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं देते हैं। आपको क्या करना है? रोज 1 आवर डेली आपको स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना है। आज बहुत सारे स्पिरिचुअल सेशंस, आपको भगवत गीता के सेशंस भी आपको अवेलेबल है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह आप वॉच कर सकते हो। तो रोज 1 घंटा अगर आपको पॉजिटिव थॉट्स ले लोगे तो उसका इफेक्ट ये होगा, जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में है वो नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। भगवत गीता में बोला है
ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जो ज्ञान ये ऐसा जल है जो मन के ऊपर का जो डर्ट है उसको साफ कर देता है। आज शरीर का जो गंदगी है साफ करने के लिए हम स्नान करते हैं, हम नहाते हैं, लेकिन मन के ऊपर का जो गंदगी है, डर्ट है, उसको क्लींसिंग करने के लिए हमें ज्ञान के जल की जरूरत है, स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत है। तो रोज 1 आवर स्पिरिचुअल नॉलेज, 1 घंटा स्पिरिचुअल क्लासेस जिसमें अच्छे स्पिरिचुअल थॉट्स, एंड द सेकंड थिंग इज दैट रोज 15 मिनट्स आपको योग का अभ्यास करना है। और जो मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन करने का अभ्यास आपको बताया, वो अभ्यास आप दिन में कभी भी कर सकते हो। आप अलार्म क्लॉक सेट कर दो, हर 1 घंटे में 5 मिनट्स, अगर अलार्म बजेगा आपको मोबाइल का, हर 1 घंटे में 5 मिनट्स आप क्लासरूम में बैठे हैं तो भी आप भ्रुकुटी के बीच में अपनी आत्मा को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हो, अपने मन को स्टेबलाइज करने का अभ्यास कर सकते हो। रात को सोते समय 15 मिनट्स कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाइए, उस समय हाफ एन आवर कीजिए। तो अध्यात्म की नॉलेज जो है उसको हम भूलते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से आज रियल पीस एंड हैप्पीनेस हमें नहीं मिल रही है। साइंस, मॉडर्न साइंस जो है हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है। इज इट ट्रू और फॉल्स? मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है या नहीं लेके जा रही है? बताइए, हाँ या ना? आज से 80 साल पहले न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब था क्या? 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। Who was the father of एटम बॉम्ब? एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया, किसी को पता है क्या? हुआ 45 में फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन किया रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब। और आज आफ्टर 80 ईयर्स छोटी सी छोटी कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब है, एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर मिसाइल से। मेरे घर के नीचे अगर एक्सप्लोजिव्स है, बारूद है, एम आई सेफ इन माई हाउस? तो आज सारी दुनिया में ये न्यूक्लियर वेपन्स है, सबमरीन से, समुद्र के अंदर है, दे आर इन ओशंस। और टू एक सरफेस टू सरफेस मार करने वाले न्यूक्लियर मिसाइल से, आकाश में मार करने वाले न्यूक्लियर मिसाइल से। तो साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। आज अगर आप देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ, अभी रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जातियों में झगड़े, कास्ट वाइज आज आपस में झगड़े हैं। तो आज सारी दुनिया में अशांति फैल रही है। हम कितने सारे वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अहिंसा सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन क्या पीस एस्टेब्लिश हो पा रही है दुनिया में? वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद पीस एस्टेब्लिश नहीं हो रही है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने ऑर्डर दे दिया स्टेटस को, द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, उन्होंने स्टेटस को का ऑर्डर दे दिया। उसके बावजूद आज भी वॉर रुकी नहीं है। इसका मतलब ये सारी की सारी पीस एस्टैब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो चुकी है और मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। अगर 3rd वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स का अगर इस्तेमाल हुआ तो उससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज? देन व्हाट विल हैपन? डू यू नो what will happen if the temperature of the earth will increase? If the temperature of the earth will increase, then glaciers on the north pole and south pole will start melting. अभी भी मेल्ट हो रहे हैं और वो मेल्ट होने से क्या होगा आगे पता है क्या होगा? ओशंस का जो लेवल है, सी लेवल, वो इंक्रीज हो जाएगा और सी लेवल इंक्रीज होने से जितने भी ये आइलैंड से अमेरिका, यूरोप, रशिया, अफ्रीका, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर ऑल आइलैंड्स, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। तो आज साइंस, मॉडर्न साइंस हमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, ऐसा समय है। तो आज ये जो समय है जहां धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन सिर्फ साइलेंस की पावर में है और साइलेंस की पावर आती है अध्यात्म से।
और आध्यात्मिक नॉलेज जो है भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। दिस स्पिरिचुअल साइंस इज द बेस्ट एजुकेशन। आज वकील बनने की जो एजुकेशन है, डॉक्टर बनने की एजुकेशन, इंजीनियर बनने की एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन नहीं है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, अध्यात्म विद्या सबसे सर्वश्रेष्ठ नॉलेज है।